Knowing, ma'am. Oh, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, the result for class 12th has come today. Yes. Okay. So we are starting our class for today. Who wants to be the monitor for today's class? अभी तक किसको चांस नहीं मिला है? बेटा क्लास के स्टार्टिंग में जब तक मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने ना जाऊं तब तक अपना वीडियो ऑन रखा करो. ऑल ऑफ यू जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो फास्ट. Switch on it. Very good, very good. Sarah, ma'am. Sairam, everyone. Sairam, beta. Ah, shabash. Very good. You have to keep your video on, right? Who is there with mic? के किसका डीपी है, प्रोफाइल पिक्चर है, क्या है? ओके. मुकुंद शर्मा, राजवर्धन, गुनिका, रामा, भूपेंद्र. अच्छा, ओके, ठीक है. प्रियांशी, नो करते हैं. ओके. हेलो Yes. आवाज आ रही है? Am I audible? यस मैम. अच्छा, okay, it's okay. Those who have problem, that is okay. Others should switch on it. Yes, children. So I think Sumit, you haven't got chance yet to be the monitor. Sumit, am I audible to you? Will you be the monitor for today's class, Sumit? Okay, ma'am. Yes. Okay. So as we did the exercise 3.1 in our last exercise, क्यों प्रॉब्लम हो रही है सुमित? अब पूरे टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा ना? Okay. ठीक है. I am going to present my screen now. We will start exercise 3.2 today, है ना? 3.1 we did in last class. Now today we will start 3.2. So in 3.2 we will discuss some more things. अच्छा, इस चैप्टर में हमारा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, राइट? हमको ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली पढ़ना है. Okay, so now I am going to present my screen. All of you just be ready with your notebook, book, pen and whatever required material is there. Just give me few seconds. I am sharing my screen. Yes. Yes. Sumit, is the screen visible to you, beta? Yes, ma'am. Okay. Now here we are starting next exercise, that is exercise 3.2, and what we have to do, read the question, Sumit. Question number 1. What is the name? Write the answer of each of the following questions. Yes. First, You have first. what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Yes. What is the answer for this? Already we have discussed in our previous class and even in introduction to this chapter. उसमें भी हमने discuss किया था. In 2 classes we have already discussed about it. So what are the names? What do we call it? मैम एवी सिक्का X axis and Y axis. Yes, x axis and y axis. Y axis. राइट है, राइट आंसर. x एक्सिस और y. बेटा यहाँ पे उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं ये नहीं पूछा है आपसे, ये पूछा है रीड द क्वेश्चन केयरफुली. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू determine the position of any point in the Cartesian plane, right? So we have to name the lines. तो उन lines को हम क्या बोलते हैं? एक vertical line हम खींचते हैं और एक horizontal line खींचते हैं.
Then the plane is divided into 4 parts. तो उन lines का हमने क्या नाम दिया था? X axis और Y axis. So the answer is X axis and Y axis. So just write this answer. First, second, third. Okay. So now read the second part. What is the Ah. name of each part of the plane formed by these two lines? Yes. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? Whenever we draw these two lines on any plane, the plane is Quadrant. divided into how many parts? In how many parts the plane is divided? 4. Yes. So what? A quadrant. Yes. Right answer. Quadrant. So the name of each part is quadrant. So write this answer. Now see the next part. Write the name of the point where these two lines intersect. Yes. उस point को हम क्या नाम देते हैं बेटा? That also we have. Origin. Yes. Origin. Very good. Origin. Origin. Yes. Right. So let's see the answers of all this. Let's check it. Here the answer of first is x-axis, y-axis, and the name of each part of the plane is, because क्या करता है ये 1/4 part में है ना, तो all 4 equal part, तो each part is known as quadrant, and the name of the point where both the lines intersects or both the axes intersect, that is origin. Origin, and we denote it by O. Hopefully you all must have written it. Yes. Yes, Okay. ma'am. Okay, so I am coming back to you. Yes, so in this way our first question is done. Is there any problem to anyone in this question? I don't think so. किसी को है कुछ problem? क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक था, है ना? बेसिक था ना बेटा ये हम बिल्कुल सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. Yes or no? Say something. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So here first question is completed. Now we are going to start the next question. If you got the first question, write Y in chat box. Okay. Okay. Very good. Very good. Most of you are reading it. Okay. Rama, Pragya, Rajvardhan, Janvi, Ratika, Nakul, Swarnim, Sumit, Nilay, Pujit. Okay. Iman. Okay. All of you have got it. Right. ठीक है बेटा. It's okay. I hope. हाँ गुनिका सबने लिखा है. Very good. सबको आ गया समझ में? Very good. ठीक है. याशिका ने भी लिखा है. Okay. Now just give me 1 second. I am taking your attendance. Before starting the second question, I am going to take your attendance, and as I told you earlier also, कि attendance will be taken 2-3 times, है ना? 2-3 times मैं आप लोगों की attendance लूंगी. तो इसमें कुछ problem ठीक है. So as we did first question, now we are going to start second question. सुमित, जब बेटा जरूरत हो तभी माइक ऑन करना. Till then you can mute yourself. Okay. Is it coming? You are sharing you are presenting your screen. Yes, ma'am. Okay. Is it visible, beta? Sumit, is it visible? Yes, ma'am. Okay. So read it. Read the question number 2. See figure 3.14 and write the following. Yes, wait. हाँ बेटा, देखो ये इसमें in your book also you should watch it. देखो यहाँ पे one figure is given in your book, and what you have to do, you have to write these coordinates of different points, or somewhere the coordinates are given and you have to find out that point. है ना? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या करना है?
यहाँ पर फर्स्ट टू पार्ट्स में जो पॉइंट्स के नेम्स हैं लाइक बी एंड सी, वी हैव टू राइट द coordinates of these 2 points and we have to find this point -3, -5 and 2, -4 ये कहाँ पर है ये हमको बताना है और उसका आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है ABCDEF जो भी नाम होगा that we will find out. So watch the figure carefully, then only you can do it. So the coordinates of B, so in this figure find out where B is written here. Have you got it? Can you see my cursor easily? समझ में आ रहा है, दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ देखो कर्सर पे ये पॉइंट बी है. अब बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है बेटा, तो हम पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं. यहाँ से ये जो पॉइंट बी है हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया. इससे हमको पता चल जाएगी वैल्यू. तो एक्स एक्सिस पे हम जैसे ही नीचे आए तो हमने देखा इसकी वैल्यू ये कहाँ पर आ रहा है बेटा, -5. -5. एंड वाई एक्सिस पे हम कितना ऊपर गए हैं, -2. -2 2. ऊपर गए हैं वाई एक्सिस में, है ना. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी, क्या क्या होंगे, -5 and 2. -5. -5, -5, 2. yes, Comma -5, 2. Very good. And in which quadrant this is lying beta? Second. Yes, वो तो तुम अभी फिगर में इसमें देख के भी क्लियरली बता सकते हो. अदरवाइज अगर सिर्फ -5, 2 होता, देन एज वी डिस्कस्ड कि इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट की मींस एब्सिसा की वैल्यू होती है क्या, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट की मींस वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है पॉजिटिव, है ना. क्योंकि यहाँ वाई में हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जितने भी होंगे उन सबके लिए क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी. राइट हैंड पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनके लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी. लेफ्ट हैंड पे जितने भी पॉइंट आएंगे उनके सबकी वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए नेगेटिव होगी, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए. और वाई कोऑर्डिनेट के लिए जितने भी ये इस एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे और जितने भी इस एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे वो सब नेगेटिव होंगे. Yes. Now the coordinates of C. Second part. Coordinates of C. तो C point कहाँ है इसमें ढूंढो. Ma'am, In 5 which- -5. Okay. 5, -5. 5, -5. Yes. Who have answered 5, -5? किसने दिया बेटा आंसर, सही आंसर है बोलो. Ma'am, Nakul. हाँ, very good Nakul. Others can also give the answers. Be active children. Very good. So you can see point C here. Cursor is visible बेटा. Yes, ma'am. हाँ, तो पॉइंट सी आप देखो, ये पॉइंट सी में हमने क्या किया, पॉइंट सी से हमने एक्स एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ किया. अब एक्स एक्सिस में तो पहले हमको एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से इस एक्स एक्सिस पे आए, तो एज इट इज द राइट साइड, है ना, तो राइट साइड में यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी. अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, 5 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई, 5, कॉमा. अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ढूंढेंगे तो y एक्सिस पे चलते हैं, इस लाइन से कहां आ रहा है ये, -5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज -5. ठीक है. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, 5, -5. राइट इट. And you are knowing how to write the coordinates of any point. Do you know the way? Yes, ma'am. Yes, do you know the way? आप Yes, कैसे ma'am. लिखते हैं बताओ. राजवर्धन बताना जरा कैसे लिखते हैं बेटा. Ma'am, please repeat the question. My question was how to write the coordinates of a point. Did I explain you? Ma'am, first we write positive, then negative. Oh, in that way मेरा है. अच्छा. Very good. Wait, मैं जिससे पूछूं वही बताना. रुको, हेमंत. मैम पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे फिर वाई एक्सिस का लिखेंगे. हम जैसे मैम x, y. x, y और बस डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं. कुछ तरीका बताया था मैंने लिखने का. Ma'am, the coordinates of B is x, y. Bracket में. हाँ,
ब्रैकेट में, कौन सी ब्रैकेट में? Small. Yes, always we write it in small bracket, and this is called ordered pair. It means always we write in the order. First x coordinate की वैल्यू लिखते हैं, फिर y coordinate की वैल्यू लिखते हैं. So in bracket, in short, we can write x, y, या small a, b से भी बताते हैं. तो in the bracket a, b also can be written. ठीक है? और small letters का use करते हैं हम. तो in small bracket x, y, or in small bracket a, b. In that way we write, and it is called ordered pair. It means always first we write abscissa and then we write ordinate. और जनरल लैंग्वेज में तुम बोल सकते हो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहले लिखते हो, y की बाद में. ये पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर. सबसे पहले किसने आंसर दिया था? राज. पे योर अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन दो क्लास में. Yes, ma'am. Okay, so now second part is done. The third part is the point identified by the coordinates -3, -5. अब -3, -5 पे कौन सा पॉइंट है? तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3, राइट? तो अब -3 Point E. -3 पे आए और कॉमा -5 नीचे गए. यस, पॉइंट E. Who has given the answer? I'm Nakul. Very good. I think only Nakul is listening sincerely. What about the others? गर्ल्स में से तो आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी. क्या बात है भाई? Yes, girls, are you listening or not? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. what is the answer for third part? Ma'am, E. Point E. Yes, correct. Be attentive in the class, every one of you. मैं किसी से भी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. Okay, now see the fourth part. Gunika, you read the fourth part. Gunika, are you there in the class? गुनिका है क्या क्लास में? जानवी, am I audible बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Is ma'am. Gunika there in the class? Is she there? And she has No, joined ma'am. now. अच्छा, okay. Okay, so anyone from girls should read the fourth part. Ma'am, can I? Yes. The point identified by the coordinates 2, -4. Yes, the point identified by the coordinates 2, -4. अब 2 मतलब x एक्सिस पे हमको पॉजिटिव साइड में जाना है, मतलब राइट साइड पे. तो ये आ Ma'am, गई G. Ma'am, G. G. हाँ जी, बिल्कुल सही है जी. Okay, so the coordinate of this point 2, -4. These are the coordinates, and इसका नाम क्या है? The name of this point which is showing 2, -4 is G. तो ये this is the answer for second part. Okay, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you just watch it in short. एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, एल पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है यहाँ पर 0. इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये आ रहा है 0 पर, यानी 0. और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 5 ही. ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0. सबसे पहले लिखेंगे x. अच्छा, अभी और भी थे क्या इसके पार्ट्स? यस. सो एब्सिसा ऑफ पॉइंट D. एब्सिसा ऑफ पॉइंट D मतलब पॉइंट D का है. पहले तो ये देखें, एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर x कोऑर्डिनेट हियर? 6. हाँ, अभी तो आंसर यहाँ पे विजिबल है बेटा. वेरी गुड.
सो द एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेकिन निकालना कैसे, समझ में आई? क्या पूछा था? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब यहाँ इसको दो वैल्यू नहीं लिखेंगे, एब्सिसा मतलब सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉइंट डी से देखो एक्स एक्सिस पे आओ, क्या है वैल्यू 6, तो एब्सिसा ऑफ डी इज 6। और वैसे ही अगर ऑर्डिनेट पूछूं मैं तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज टू क्या है वैल्यू? 2. 2। वेरी गुड। Two. किसने आंसर दिया? सबसे मैम, पहले सुमित। गर्ल्स, नहीं गर्ल्स में सबसे पहले किसी ने दिया था 2। जानवी मैम, मैंने जानवी. हाँ वेरी गुड जानवी। सो है ना, डी से बेटा परपेंडिकुलर खींचेंगे कहाँ? y एक्सिस पे, तो अब d से हम y एक्सिस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है? 2। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d इज 2, मींस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर पॉइंट d के कोऑर्डिनेट्स पूछूं मैं तुमसे तो क्या होंगे? My 6 minus 2. 2. 6, 6 2. 2. 6 2. 6,2. 6,2 यस 6,2 इज द राइट आंसर, है ना बेटा? माइनस नहीं आएगा, 2 के लिए हम नीचे थोड़ी गए हैं, ऊपर ही है, तो ये 6,2 राइट। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ पार्ट, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H। Minus 3. यस, वेरी गुड। पॉइंट H यहाँ पर है, इस H का ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो अब इस पॉइंट से हम कहाँ जाते हैं? y एक्सिस पे जाते हैं, तो y एक्सिस पे ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? कर्सर इज विजिबल बेटा? यस मैम. Yes, ma'am. कहाँ पे जा रहा है? -3 पे। तो व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H? दैट इज -3। इज इट क्लियर? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Now, what are the coordinates of point H? H के coordinate बताओ मुझे क्या है? मैम -5, -3. Very good. Well done, well done. बहुत अच्छे, शाबाश। मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है। It's very good children. क्योंकि ये मैम, का लोकेशन ही नहीं करते आया, तो लीनियर इक्वेशन में जब हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं, जब हमको ग्राफ खींचना होता है, तो ग्राफ मतलब लाइंस बनती हैं, देन टू ड्रॉ द लाइन वी हैव टू लोकेट द पॉइंट्स फर्स्ट। तो अगर हमको पॉइंट को ही प्लॉट करना नहीं आया तो लाइन तो खींच ही नहीं पाएंगे, है ना? तो अभी इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब क्या, ऑर्डिनेट मतलब क्या, कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, ये हर एक टर्म का बिल्कुल क्लियर तुम्हारे इसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और कौन से क्वाड्रेंट में कैसे साइन होते हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स के, ये बातें अगर क्लियर है तो तुम बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और लीनियर इक्वेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। और उनको रटने की भी जरूरत नहीं है कि कौन प्लस कौन माइनस, यहाँ पे दिखता ही है बेटा। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, ऊपर जा रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ से ओरिजिन से एक्स में जब लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि हियर ऑल नंबर्स आर विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव होगी, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई पॉजिटिव ही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाता है बेटा? माइनस कॉमा प्लस हो जाता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। फिर थर्ड यहाँ नीचे आए तो देखो एक्स में तो हम अभी लेफ्ट पे ही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव ही होगी, और जैसे ही हम इस ओरिजिन से नीचे आए तो दिस विल आल्सो बिकम नेगेटिव। तो देखो -1 -2 -3, तो यहाँ पर इन दिस थर्ड क्वाड्रेंट x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, सो द साइंस आर माइनस कॉमा माइनस। as soon as we go to फोर्थ क्वाड्रेंट, नाउ वी कैन सी कि अब हम जैसे ही इधर आए तो हम इस ओरिजिन के राइट में आ गए, तो जैसे ही राइट में आ गए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अब सारी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। समझ में आ रही है बात? Yes मैम। हाँ। Yes ma'am. तो यहाँ पे x एक्सिस में सारे x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और हम क्योंकि अभी यहाँ नीचे हैं इसलिए y कोऑर्डिनेट्स की सबकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका साइन क्या होगा? प्लस कॉमा माइनस, मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा।
तो दिस यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो आपका इस चैप्टर में तो फायदा है ही, अगले चैप्टर में भी फायदा है और 10th क्लास में भी फायदा है। इज दैट क्लियर? सो स्टडी इट प्रॉपरली। ये छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर का वेटेज भी अच्छा है, तो अभी के लिए भी तुम्हारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स अ गुड चैप्टर, तो यू शुड स्टडी इट प्रॉपरली। चलिए, यानी कि एफसी का और उसके बाद कोऑर्डिनेट। चलो, सो वी हैव डिस्कस्ड अप हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट 0,5 एल कहाँ है? लेट मी फाइंड आउट एल फर्स्ट। ये रहा एल। ओके, मैम 5 एल पॉइंट यहाँ पर है, तो हम एक्स एक्सिस पे तो कहीं गए नहीं है बेटा यहाँ। तो मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 0 और वाई में ऊपर 5, तो 0,5। So the coordinates of the point L is 0,5. Yes. And at last हमें जिसमें बेटा ये अब किसका माइक ऑन है? जरा ऑफ करो अपना माइक, डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। Yes. Now the coordinates of the point M, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएंगे, बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे। साजिद, what are the coordinates of point M? -3,0. M ये रहा -3,0। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। तो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू हाउ टू लोकेट द पॉइंट। इसकी और प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन में जितना पार्ट पूछा उतना आंसर तो हमने दिया, लेकिन जैसे मैंने फिफ्थ को तुम्हें और डिटेल में समझाया था, फिफ्थ में सिर्फ तुम्हें एब्सिसा की वैल्यू पूछी थी, मैंने तुमसे ऑर्डिनेट की वैल्यू भी पूछी और तुमसे डी के कोऑर्डिनेट भी पूछे। तो ये अपने आप से भी ये करके देखना इसमें, जैसे इस पॉइंट में सिक्स्थ पार्ट में, तो इन दैट वे यू शुड सॉल्व। आई होप यू मस्ट हैव डन इट। अभी अगर इतना ड्रॉ नहीं कर पाए तो बुक में तुम यही इन पॉइंट के साइड में तुम इनके आंसर्स लिख सकते हो, फिर बाद में अपनी होमवर्क कॉपी में कर लेना। ओके मैम। इज इट डन बाय एवरीवन? ओके, यस मैम। नाउ हाँ, आई एम कमिंग बैक टू यू। मेरा साउंड इको हो रहा था अभी, शायद किसी के माइक ऑन होने की वजह से। क्या? यस मैम। दैट इज द रीजन। 25, अभी 27 थे, अभी 25 है। ओके, टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज ही अपना कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 3.3। 3.2 इज कंप्लीटेड। यस, ये मुकुंद मीना के साथ और कौन है बेटा? मुकुंद, हु इज विथ यू? टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट देख के बताओ तुम्हारे साथ में और कौन है। मुकुंद मीना, एम आई ऑडिबल टू यू? जल्दी बताओ, नहीं मैं तुम्हें मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। वन मोर वाज देयर विथ यू। मुकुंद मीना, एम आई ऑडिबल टू यू? तुम्हें सुनाई आ रहा है? नहीं आ रहा शायद, सो आई विल हैव टू रिमूव। बेटा दो लोग एक, अरे डर क्यों रहे हो? अगर कुछ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड ज्वाइन कर रहा है जो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है किसी रीजन से, तो तुम बता सकते हो। मुकुंद, मुकुंद मीना, बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? Yes, यस मैम। Yes, ma'am. मतलब से मुकुंद कोई नहीं आ रही है, तो आई एम गोइंग टू रिमूव हिम। अभी ज्वाइन हुआ है तो फिर ये क्या है? इज ही देयर? अभी उसने मीटिंग है ऑलरेडी, ही हिमसेल्फ लेफ्ट द मीटिंग। ओके, सो दैट्स बेटर। नाउ आई विल नॉट अलाउ हिम। अभी आएगा तो फिर रिमूव कर। ओके, yes children, so as I was telling you, our exercise 3.2 is completed. We are going to start exercise 3.3, and in that exercise how many questions are there? Only two questions. So what is the first question? Hitendra, read the first question. Hitendra,
Ma'am, can I? हाँ सुमित, ओके। Yes, ma'am. In which quadrant or on which axis do each of the points bracket -2, 4 bracket close हाँ, okay. So minus in which quadrant the given points will lie? This is the question. Am I right? Some points are given, and in which quadrant yes, they will lie? It is asked to you, isn't it? yes ma'am. तो now I think that question must be done by yourself. अब हमने अभी एक बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट और कैसे साइन आते हैं. तो now I am not going to discuss question number 1 here. We are directly taking question number 2. So our exercise as well as the chapter will be completed today. Is it okay with you, children? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. now I am going to present my screen once again for question Yes, number 2 madam. of exercise 3.3. Okay, is it visible to you? Yes ma'am. Now read the question, beta. Question number 2. Anyone read it? Ma'am, plot the points x y हाँ. given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. Yes. Now we have to plot these points on a graph paper using suitable scale, right बेटा? अब इसके लिए क्या करना? सबसे पहले तो x एक्सिस पे तुम पूरे पॉइंट्स को ठीक से देख लो. x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो यू कैन सी जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 3. मतलब x एक्सिस पे हमको ये जो लाइन ड्रॉ करनी है और y एक्सिस की जो लाइन ड्रॉ करनी है, वी हैव द सफिशिएंट साइज ऑफ ग्राफ पेपर. अब ग्राफ पेपर पे बेटा हमको दोनों लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये जो भी पॉइंट्स हमसे पूछे हों वो प्रॉपर्ली इस ग्राफ पेपर पे आ जाए. नाउ वॉच केयरफुली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y. y के कोऑर्डिनेट्स देखो 8, 7, -1.25, 3 एंड -1. तो मिनिमम वैल्यू है -1.25 और मैक्सिमम वैल्यू है 8. तो y एक्सिस पे ऊपर हमको जाना पड़ेगा 8 तक. तो अगर हमने ठीक सेंटर से लिया, अगर ऊपर 8 तक हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ठीक सेंटर में ये दोनों लाइन खींचने से अगर ऊपर 8 तक नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक्स एक्सिस की इस लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? So first of all you have to observe all the coordinates, all the points. उसके अकॉर्डिंग तुम्हें x और y एक्सिस ड्रॉ करनी है जिससे कि जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है वो तुम्हारे ग्राफ पेपर पे प्रॉपर्ली आ जाए. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. है ना? Yes ओके. Yes, ma'am. यू कैन सी, देखो अभी यहाँ पे ये x एक्सिस जो खींची हुई है थोड़ा सा नीचे की तरफ खींची हुई है, राइट? नाउ वी विल स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज -2,8. तो -2,8 है तो हम x एक्सिस पे ये रहा ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन से स्टार्ट करके हम x एक्सिस पे जाएंगे -2 तक. सो हियर इज द पॉइंट -2 और y एक्सिस पे कहाँ जाना है बेटा? 8. यानी ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? ऊपर. हाँ, ऊपर जाना है. तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे 8 तक. तो यू कैन सी द कर्सर, हियर द कर्सर इज केप्ट. सो दिस पॉइंट विल बी टेकन एज -2,8 और इस पॉइंट को डॉट लगा के छोटा सा सर्कल बना देना, उसको एनसर्कल कर देना. सो दिस पॉइंट विल बी नोन एज -2,8, राइट? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज -1,7. -1,7 है तो x एक्सिस पे हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट साइड में. ये रहा पॉइंट -1 और 7 है तो फिर से हम ऊपर ही जाएंगे. सो दिस इज द पॉइंट -1,7. ये यहाँ पर आर यू गेटिंग? जहाँ पे कर्सर है तो यहाँ पे पुट अ डॉट एंड एनसर्कल इट. सो हियर यू विल गेट -1,7. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 0, -1.25. तो ये आ गया हम x एक्सिस पे, हमें कहीं नहीं जाना है. ये x एक्सिस पे ये रहा 0 और y पे अब हम कहाँ जाएंगे बेटा? ऊपर जाएंगे या नीचे? मैम नीचे. राइट. सो द पॉइंट इज -1.25. 1.25 तो सबसे पहले तो ये आ गया माइनस, नीचे आ गए हम -1 और -2 के बीच में आएगा कहीं पर
अब -1 और -2 के ठीक बीच में आएगा -1.5। समझ में आ रहा है? ग्राफ पे लाइंस होती है ना प्रॉपरली, ये एक बॉक्स के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं, ऐसी 10 लाइन Yes. और खींची हुई, तो 1.5 आएगा ठीक बीच में। तो -1 और -1.5 के ठीक बीच में कौन आ जाएगा? -1.25। इन दैट वे यू विल प्लॉट इट। देन 1,3, इट्स वेरी सिंपल। 1 है तो एक्स एक्सिस पे राइट पे जाएंगे और 3 है तो y एक्सिस पे ऊपर जाएंगे। सो हियर यू विल गेट द पॉइंट 1,3। देन 3, -1, तो ऑन एक्स एक्सिस यू विल गो अप टू 3, ये आ गए 3 तक। y में -1 है तो हम नीचे जाएंगे ये यहाँ तक, तो दिस पॉइंट विल गिव यू 3, -1. So this is the point. So in this way we have plotted all the point. So just watch this video, so it will be very clear to you. जो है सो हमने यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस जो है वो 1 ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। मैं सिर्फ तुमको ये थर्ड वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी, तो इसलिए अभी बाकी पॉइंट्स को हम इन शॉर्ट लेंगे। ऑलरेडी नाउ यू आर नोइंग एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड। फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा -2 और 8, तो ये कहाँ पर आएगा? x है -2, ये -2 है x और y है 8, सो y है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से भी ड्रॉ करेंगे, मतलब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप ले सकते हैं। -2 से परपेंडिकुलरली हम डॉटेड लाइन यू शुड ड्रॉ। पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जो ये रेड डॉट बनाया है ये हो गया पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट भी लिखना होगा हमें, जो x पहले लिखा जाता है और y बाद में। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 और 8, सो ये कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 8, ठीक है। हाँ, so after plotting the point you should write this coordinates also like this, and as I told you कि point बिल्कुल डॉट छोटा सा बनाते हैं हम पेंसिल की टिप से, तो that's why उसको छोटा सा सर्कल जरूर बना देना, एनसर्कल कर देना, so that that point will be highlighted। सिंपल अगर पॉइंट प्लॉट करके छोड़ दोगे बेटा तो ग्राफ पेपर पे दिखता नहीं है कई बार, पर हल्का सा तुमने पॉइंट जैसे ही उसको प्लॉट किया उसको हल्का सा एनसर्कल कर दो, छोटा सा उसको गोला बना दो उसके ऊपर, तो वो क्लियर हो जाएगा, वहां पे क्लियर दिखेगा। और इस तरह से तुमको सारे पॉइंट प्लॉट करने के बाद उस पॉइंट के साथ में उसके कोऑर्डिनेट भी लिखते जाना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। -1 और 7, x है -1, y है 7, सो x -1 यहाँ पर और y 7 यहाँ पर, सो यहाँ से माइनस क्या हमारा -1 7, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे -1 और 7, ठीक है। आगे है 0 और -1.25। अब इसको ध्यान से देखो यहाँ पर, और इसे y की वैल्यू -1.25 तक लेके जाएंगे। x यहाँ पर है, परपेंडिकुलरली हम चलेंगे 1.25। अब मेन पॉइंट क्या है कि 1.25 होगा कहाँ माइनस में? ये -1 ये -2, इसके बीचों बीच यहाँ पर 1.5 होगा, और 1.25 कहाँ होगा? -1 और 1.5 होगा, ठीक है। ये जो रेड लाइन ड्रॉ की है ये 1.5 -1 और -1.5 के बिल्कुल बीचों बीच होगा ये, ठीक है। तो ये बना देता हूँ मैं, ये रेड सा जो डॉट बनाया है कुछ यहाँ पर होगा हमारा 0 और -1.25 का कोऑर्डिनेट, तो इसे लिख देंगे 0 -1.25, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। आगे है 1 और 3, x की वैल्यू 1 y की 3, सो x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, y की वैल्यू 3 यहाँ पर है। सो x से हम परपेंडिकुलरली जाएंगे और y से भी परपेंडिकुलरली आएंगे, तो पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट का नाम लिख देंगे, x की वैल्यू 1 और y की 3। Yes children, so now I am coming back to you. I hope you have got it. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So yes. So in this way our this exercise is also completed, as well as our chapter is also completed, right children? So our third chapter is completed here. So we have completed 3 chapters as of now. Now you people should be ready for test of this chapter, और as well as बाकी चैप्टर के भी हम टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। और अपना फेयर वर्क सब कंप्लीट करके आप कॉपी मुझे बता देना, आप लोग भेज देना। इफ यू कैन मेक लाइक PDF और ऐसे कुछ करके अगर आप भेज सकते हो तो यू शुड सेंड इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
From my side, if you wish to ask anything, you can ask. Otherwise, we will conclude today's class. आपको कुछ पूछना है किसी को? मैम मैम सारे 3.1 कॉपी में करनी है क्या? क्या बेटा? मैम 3.1 कॉपी में करनी है। 3.1 क्या था एक्सरसाइज में? मैम वो नहीं, अच्छा वो टेबल लैंप पर उसका नो Yes, ma'am. नीड टू डू दैट एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, बट यू शुड अंडरस्टैंड इट। हमने की है, लेकिन उसको तुम्हें कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके मैम कॉपी के हर चैप्टर की पीडीएफ बना के सेंड करनी है आपको? हाँ, बना सकते हो ऐसे। यस मैम। ठीक है, अगर बना सकते हो तो फिर बना के करना है। एक एक चैप्टर की भेजना। अभी पहले थर्ड चैप्टर की भेजना। थर्ड चैप्टर में यू विल पेस्ट ग्राफ पेपर। मैंने बताया था तुम लोगों को चैप्टर की स्टार्टिंग में, राइट? अभी जो भी प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज यू आर हैविंग अनदर क्लास एट 3 o'clock. सो टुडे वी आर कंक्लूडिंग इट। और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आज जो पढ़ा उसमें अगर दिक्कत है तो बोलो। No, ma'am. Okay, so we are concluding our class. Let's start Shanti part. Om Shanti Shanti. Okay, children. Sai Ram, take care of yourself. सारा मैम। Sai Ram. Sai Ram, ma'am. Sairam ma'am. Sai Ram. Okay, you can leave.